نہیں تساں تے قیاس پیش کیتا ہے نا، مشکل گل ہے تساں کوئی بھی نہیں کیتی. یہ ساری گلاں تے قیاس اللہ فون گیا ہونا ہے، انج ہویا ہونا ہے، انج ہویا ہوگا، یہ سارے قیاس ہن نا. یہ اللہ دا گل ہے کہ نہ قیاساں تے مرزا صاحب عقیدہ بنا لیا سی. دیکھو ذمہ دار بندے نے، ذمہ دار نے تے کچھ نہ کچھ تو کرن گے نا. کمال کرنا ہے یار، کچھ کرنے جو کا بندہ ہوئے تو ہم تو باہر مسئلے بٹھانے کی ضرورت پہنتی ہے. تم کمال کرنا ہے بھائی. تسی نا میرا 15 منٹ حسن زن رہن دیو. ساڈا تو اس نے زن قائم. میں ویکھو اساں ترلا پایا ہے، اساں وہ ترلا پایا کہ سانو عامر رضی نے ساری زندگی براڑ نہیں شیئر کیتی. اج اس براڑ شیئر کر سٹی ہے تنڈے انٹرویو روایت یہ لاج رکھ لے. جی بابر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہو گیا بابر بھائی، مل کر رہا کرو برابر، کوئی ویکھے نہ ویکھے برابر مل کر رہا کرو. ہاں ٹھیک ہوگا، بالکل صحیح ہے. یار بابر بھائی مینوں وہ والی ویڈیو نہیں لب رہی یار جیڑی عامر بھائی نے تے ادھر ملک دی براڑ تے عمران کالو دے نال ہویا سی نا، وہ نہیں لب رہی یار مینوں ویڈیو. میں تمہیں لنک سینڈ کرنا، کر دینا، میں لوڈ کے کر دینا. وہ مینوں کر بابر میرے تو مینوں نہیں پتا. زہ جمیل نے چڑھائی سی 2 گھنٹہ 40 منٹ دی ہے، 1 گھنٹہ 40 منٹ کے 2 گھنٹہ 40 منٹ کی ویڈیو ہے براڈ نہیں. وہ میں تینوں شیئر کر دینا ہوں. ٹھیک ہے مینوں کر دے. مولوی صاحب نے ٹائم لایا نا، مولوی صاحب سکرین تو ہی ہٹ گئے نے. یہی میں دیکھ رہا ہوں. مولوی صاحب وہ منظر عام تو ہی ہٹ گئے. اویس بھائی تسی نہیں لبیا بندہ؟ بھائی میں شیئر تو کیتا ہوں، میں شیئر ہی کر سکتا ہوں. انہوں تکو کہ آن لائن پیچھے ٹور جاسو. آن لائن نہیں شو ہو رہا. چلو اینا ہویا ولید بھائی تو دستے پہ تہاڈے ہی جس ملک ہے تسی اتھے ہی ہو تو بندہ پولے پولے کول ہی ٹور جاندا ہے بھائی. فیس انٹرویو ہو جاندا ہے بالمشافہ. اے بھی بہت وڈا حسن زن ہے تہاڈا. بہت ہی وڈا حسن زن ہے. نہیں اس بھائی دے حسن حسن زن دی زن دے کیڑی اتنے گل 15 پھول مارتے ہیں. اس سے حسن زن دی کیڑی گل ہے؟ بندہ ٹور جاندا نہیں یار. ایڈے بھی گئے گزرے نو کسی بندے ویلکم بھی نہیں کر سکنے. انٹرویو نہ دیتا رہے تو ویلکم تے کرنے جو ہوندا رہا بندہ. نہیں بھائی ولید جتھے رہندا ہے نا، میرے تو تقریباً کو 12-13 گھنٹے دی ڈرائیو ہے. تے اے طاہر جتھے رہندا ہے اے ولید تو اگاں 12-13 گھنٹے اور ڈرائیو ہے. بھیا آپ آسٹریلیا سے باہر رہتے ہیں سارے؟ ایسے ہی سمجھو. آسٹریلیا تو ہے ٹوٹل 4-5 گھنٹے کا سارا. اپنا ہاں مسل میں کناروں کناروں پہ رہتے ہیں نا. اسکندر مرزا گل سننا. اسکندر مرزا گل انجے کہ اسی نہیں جس بھائی، میں
ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਕਤਬ ਨੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਰਕੇ ਦਾ ਮਕਤਬ ਆ ਨਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਮੂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰਕੇ ਨਾ 300-400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ 9 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਅਸਾਂ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਮਰਾ ਕਰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਫੇਰਾ ਮਰਨਾ ਪਿਆ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਮਿਲਣੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। 18 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਗੁਜ਼ਰ ਮਿਲਣੇ ਤੇ ਛੁੱਟੀ 2 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ। 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਕਨੇ ਆ। ਆਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਵਿੰਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨੋਈਅਤ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੰਮ ਖੜਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ देखने आ ना, इंतजार करना शेख मिनट और शेख रह हादी साहब, शेख हादी साहब है ना, वो आ गए हैं ब्रॉड के नीचे। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ये इंटरव्यू है जी ताहिर साहब का, तो ताहिर साहब गुमशुदा हैं, आपको मिले तो बताएं हमें भी। ताहिर साहब नौ नाम वाला मुंडा बने ने। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਮਰ ਬਾਈ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 7 ਰਹਿ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇ 7 ਰਹਿ ਗਏ। ਨਾ ਆਇਆ ਚਲੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਹੀ ਹੈ ਵਲੀਦ ਭਾਈ। जी हाँ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਡਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਪ ਪੱਕੇ ਕਰ ਵੈਸੀ। ਦੇਖੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਵਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਡਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਈਕ ਓਪਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰੋਡਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ है कि जी मैंने तहकीक की और मैं तहकीक करने के बाद मैं मिर्ज़ा साहब पर जनाब ईमान लेकर आया हूँ। तो इंटरव्यू करने का तो मकसद ही है ना कि वो जो तहकीक उन्होंने की है वो हमें भी थोड़ी सी आगे से बताएं कि वो क्या तहकीक उन्होंने की है, मिर्ज़ा साहब की कौन कौन सी किताबें उन्होंने पढ़ी हैं, मिर्ज़ा साहब के जो जो उनसे दावे थे उनको उस दावों का पता है, जो मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताबों में लिखा हुआ है उसके बारे में वो कितना जानते हैं, क्या बात उनको पता है, क्या बात उनको नहीं पता, ये चीज़ें पूछने वाली हैं ना। तो इसी मकसद के लिए इंटरव्यू क्या है। इसके बारे में वलीद शायर ने कहा था, आप वो बात क्यों पूछते हैं जो बताने के काबिल नहीं है। जी अच्छा, आमिर भाई को 15 मिनट मंगे ने, तो आमिर भाई स्क्रीन तो ही पीछे ने। हाँ वो 15 मिनट पीछे ही रह सुनो। ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਚ ਰੱਖ ਲੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਕੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਭਾਵੇਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਵੈਸ ਭਾਈ। ये तैयार लौटने पे मैं कहा आमिर भाई पीछे ही रहना है 15 मिनट। अभी 4 मिनट हैं, 4 मिनट तक आ सकता है भाई। अच्छा ये अपना वैस भाई, ये वीडियो में क्या कर रहा था वो जो आपने लगाई है अभी। खुरक पता नहीं क्या कर रहा है, खुरक शुरू हो रही थी उसको मेरा ख्याल। मिर्जा साहब की बड़ी पसंदीदा बीमारी थी ये।
लज्जत वाली खुराक। ना ना यार, किसी के वो अकाबिर हैं, हमें मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, दुख होगा लोगों को। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने मुख्तलिफ, देखिए मुख्तलिफ जो है ना, देखें ये देखें, ये बेचारा सो रहा है, एक इधर पड़ा हुआ है, एक जो है वो इधर पड़ा हुआ है। कारपोरेशन वाले कोई नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ? क्या करेगा, काटेगा ये, काटता है ये। अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने में सिर्फ 2 मिनट 40 सेकंड रह गए हैं। यार आपने बिल्कुल ही खामोश करवा दिया अमर भाई को। नहीं नहीं, खामोश तो नहीं करवाया उन्हें, वो तो उन्हें मैंने कहा है कि बातचीत करें आप। वो मेरे ख्याल में बिजी हो गए हैं कहीं। वो कह रहे हैं 15 मिनट मैं फिर कुछ और काम कर लवां ताकि फ्री हो जाऊँ फिर 15 मिनट बाद में। मैं आख्या कोई इंटरव्यू चंगा जिहा सुनने ਨੂੰ ਮਿਲ ਸੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਰਾਤ ਵੀ ਭੰਨੀ ਤੇ ਜੰਮੀ ਵੀ ਜਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਔਨ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਦੱਸਣਾ, ਬਰॉड ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲੇ ਮੁਰੱਬੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। WhatsApp ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ? ਆਖੋ ਆਖੋ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੌਬ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਵੀਦਾ ਸੀ ਨਾ 5 ਵਜੇ ਮੈਂ ਨੈੱਟ ਆਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਮੁਰੱਬੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਦਜਲ ਔਰ ਫਰੇਬ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਗਾਵਾਂ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੇ ਲਟਕਾਉਣ ਲਗਾਵਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਾ ਇਸਰਾਈਲੀ ਮੁਰੱਬੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਲੀਆਂ ਪਿਆ ਭਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪਿਆ ਭਰਨਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ। ਹੱਸ ਕੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 15 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਭਰਦਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਕਿੰਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, 6 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਕੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਨਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 72 ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁੱਸਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਆਖਣ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਰ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜਿਆ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਾਤੀ ਅਸਾਂ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਅਸਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਚੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਚੜ ਗਿਆ ਸੋ ਅਸਾਂ ਢਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਲਾ। ਟਾਈਮਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਲੀਦ।
अस्सलाम वालेकुम या रसूल भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब भाई? करम वाला पाक का जी। हे माशाल्लाह माशाल्लाह जी। आज तो तुर्कों वाला अंदाज लगा है आपका। ए माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी हाँ जी। हाँ, आज तो तुर्कों वाला अंदाज है आपका। अच्छा जी, इंटरव्यू है जी आज? होना था, अभी तक कुछ चांस नजर नहीं आ रहे होने वाले। मेरे ख्याल है 20 मिनट ऊपर हो गए हैं। 15 मिनट का टाइम आमिर भाई ने दिया था कि 15 मिनट देखे, आ गया तो ठीक है, नहीं तो मुश्किल है आना। देखे अब क्या बनता है। चलें कोई नहीं, वेट कर लें। कुछ बंदा को मसला बार दफा हो जाता है, बंदा लेट सवेर हो जाती है। आप किधर गए? हाँ जी। आप भी 2-3 दिन से गायब है, किधर गायब हो? और सर मैं वो नहीं भाई, मेरा ना उधर साइट पे जो है ना वो ये लाइव नहीं ना चलती, ये लाइव चलानी पड़ती है वाईफाई चला के और यूके की सिम डाल के। तो पाकिस्तानी सिम पे नेट चलाओ तो फिर लाइव नहीं शो होती। ठीक। तो घर जब होता हूँ ना तो फिर उस टाइम वाईफाई से कनेक्ट करके फिर ही लाइव आ सकता हूँ। अच्छा, ये तरद्दो दी है कि वाईफाई ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਘਰ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤੇ? ਉਹ ਆਮਰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਲਾ ਅਸਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ VPN ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ VPN ਨਾ ਚੱਲਦਾ। नहीं, मैं VPN लाया ही कदी नहीं। टिकटॉक ऑन करने से VPN कदी नहीं लाया। VPN में लाना होना कोई वाला शाला करना पावे, ब्राउजर ना चलना हो फिर मैं ला देना, या टेलीग्राम चेक करने से। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਈ ਰੱਖੋ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਈ, ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਚੋਂ ਆ ਨਾ ਆਮਰ ਭਾਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਬਾਬੇ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਅੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਬਦਮਾਸ਼। ਕਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ? ਪਰਸੋਂ ਤਰਸੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਗਿਆ? ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ, 3 ਮੈਸੇਜ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ, ਚੌਥਾ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਭਲਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ। ਤੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹ ਚ ਨਾ ਡੇਗ ਪਿਆ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਲਾਕ ਹੋਵੇ, ਰਾਹ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਵੇ। ਆਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ जी जी मौलवी ਲੱਗ साहब। ਗਿਆ ਜੀ ਪੋਸਟਰ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਟਾਈਮ ਖਤਮ। ਕਿਉਂ ਜੀ? जी जी टाइम खत्म हो चुका है। आ गया मेहमान। ਮਹਿਮਾਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। interview ਕਰਨਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ढूंढ लो मुझे ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸਕੋਂਦਰੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੁਪਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਰੇ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਸਕੋਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਵੇ, ਨਸਕੋਂਦਰੇ ਲੈਤੋ ਕੀਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੰਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੜੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਕੁਛੋਂ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਕਿਛ ਲੈਂਦਾ ਬਈ ਇਸ ਗਲੀ ਆਇਆ, ਇੱਧਰ ਗਿਆ, ਉੱਧਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮੰਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ? ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ
ਸਕਰੀਨ ਜ਼ਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪੜਨ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਰੀਡੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਨਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਪੈਨਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੂੰ। ਇਸ ਭਗੌੜੇ ਕਹਿ ਤੋਂ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੀ ਹਾਂ। ਸਿਸਟਰ ਲੁਬਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ? ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਦੱਸੋ। मेरा तो ख्याल है कि सिस्टर लुबना खुद इंतजार कर करके चले गए ने। चले गए बुरा किया जो तेरे वादे पे एतबार किया, गलत किया ना। आपकी तलाश में एक शख्स बाजार में फिर रहा है। मिर्ज़ा साहब ने लाम होया सी, इसके मसदाक ये जनाब ये तो ना कि ताहर साहब हैं। उस वक़्त इस्लाम की कुछ तफहीम नहीं हुई, तो आज पता चला है कि इसके मसदाक ताहर साहब थे। लोग उन्होंने लब रहे ने, ये लब नहीं रहे। क़यामत तक मसीह मौद के लम्हात पूरे होते रहेंगे। देख लो लाम हाँ जी। अमर भाई आया है मैसेज, मैं हुण चेक किया, मैं पहले चेक नहीं किया। अच्छा चलो ठीक हो गया। मैं क्या भी तुम रिस्पॉन्ड नहीं किया तो मैंने फिक्र लग गया, मैं पता नहीं मैसेज नहीं पहुंचा। बस मैं ध्यान नहीं दिता। अच्छा जी, ਹੁਣ ਲੁਬਨਾ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਏ ਤੇ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਦੱਸ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਦੱਸ। ਬੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅਬਾਵਿਆ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢਦਿਆਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਫੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਠਕਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ। नहीं कोई गल नहीं है। मिर्ज़ा साहब का एक और भी तलाम है ना, एक पकीज़ा लड़का तुझे अता किया जाएगा। तो ताहर दवानी में पकीज़ा ही हो सकता, लड़का था हो जाए और अद्धे घंटे में। ताहिर से मुराद यहाँ पाक लड़का है, तो यहाँ को पकीज़ा लड़के से मुराद यहाँ पर ताहिर है। बिकरो तैयब जीत मेरा हो रमे सब जग तेरा हो। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜ अच्छा ਪੜ ਲਾਮ। आमिर भाई तो मेरा नाम भी सुन लो। अच्छा अरे तो बाद में लगी होना है, मैं इसलिए उधर नहीं गया था। वो ऊपर इसने अमन नज़ीर को लेके बैठा हुआ था, वो ऐसे करता है वो ऐसे करता है, इसलिए मैं सिकंदर भाई आपके पास नहीं आया था, वलीद भाई के पास। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਹੈ 10 ਵਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਸੇ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਭਗੌੜਾ ਅਗਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਵੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ 1-on-1 ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। नहीं वो नीचे कह रहे हैं उर्दू में बात करें जी आमिर भाई। ये उधर मैंने बना रहे थे ना, हाँ तो मेरी हंसी छूट गई ये सोच के कि जिस बंदे को ये नहीं ना पता कि ये किस जगह से आप बना रहे हैं, उसको यही समझना है कि आमिर नज़ीर गाने गा रहे हैं। मिर्जा साहब का लाम गा रहा हूँ। जे तू मेरा हो रमे सब जग तेरा हो। ये मिर्जा साहब का लाम है। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਲਾਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਮੈਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲਾਮ ਮੋ ਕਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ईद कल है चाहे करो या ना करो। ਵਾਹ ਖਤਰਨਾਕ ਖਤਰਨਾਕ ਖਤਰਨਾਕ। ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਤਮ।
हाँ अच्छा 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 ये हुई तो मैं और सवेरे राती आमदियां दरीस पे दी गल फिर वो करदा सी कर लो जी कर जी लो मैंने कहा रात को अदरीस की वाट लगी हुई थी कि इसने पंगा लिया अव्वल नज़ीर के साथ इसको क्या जरूरत है। अल्लाह का फजल है, अल्लाह की रहमत है, ये सच्चाई का नूर है, सच की दहशत है। ये नहीं है कि अमर नज़ीर की दहशत है, बल्कि ये सच्चाई का ऐसा रोब है कि मिर्जाई 6-7 हो ना बैठे हुए तो वो आपस में एक दूसरे को उज्जे मारते रहते हैं, ना पंगा लई ना उथल दई, पंगल देगा चप्पा आना ही अगू, वो बात उस तरफ को ले जाएगा, वो बात उस तरफ को ले जाएगा, ना करो जज्जा भाई खुदा के लिए, आपको नहीं पता वो हुजूर की तरफ बात ले जाएगा। चीखा मारन लगे होंगे, लड़न लगे होंगे आपस, इत्तफाक राय नहीं हो पाता भाई गल करनी है कि नहीं करनी, मुंह च कोई लफज करना है कि नहीं करना। ये सच का रोब है। इनू कुरान ने आख्या कुल जा अल हक व ज़हक अल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। इनू कुरान ने आख्या तो कह दो हक आ गया, बातिल दौड़ गया है। इन्नल बातिल कान ज़हूका, बेशक बातिल अच्छा आमिर भाई जे भज्जण वास्ते। कर लो आमिर भाई, फिनिश कर लो गल, फिर मैं थोड़ी गल कर दूँ। बस इतना ही मैंने कहना है कि ये भगौड़ा और ये नौटंकी, ये ड्रामेबाज, ये फ्राडिया, ये मक्कार फरेबी, इस तरह के पहले भी हमने देखे। सीरतुल महदी में एक इसी तरह का फरेबी, वो नबीना है, आंखों से अंधा है, उसने बताया कि वो मुसलमानों की मस्जिद में चला गया, मुसलमानों के गांव में चला गया और जाके मुसलमानों को कहने लगा कि बताओ कौन से मिर्ज़ाई हैं जो तुम्हारे साथ बहस मुबासा करते हैं, या तो फातिमा सी लाओ उनको मेरे सामने, अभी मैं उनको ठोकता हूँ। तो मुसलमानों ने समझा कि चलो मिर्ज़ाई हमारे गांव में हैं तो ये रोज़ हमारे साथ बहसें करते हैं, तो चलो आज ये मौलवी आ गया है, आलम दीन है, मुसाफर है, दाढ़ी शाड़ी रखी हुई है, तो ये मिर्ज़ाइयों की मंजी ठोक देगा। लेकिन वो इसी तरह का ढोंगी था, नौटंकी था, फ्राडिया था, धोखेबाज था। उन्होंने 2-3 मिर्ज़ाई बुला के उसके सामने बिठा दिए, ये उनके साथ हयात वफ़ात मसीह पर दलाइल देने लगा। 2-3 दलीलें देने के बाद कहने लगा कि मिर्ज़ाइयों की दलीलें ज़्यादा मजबूत हैं। मालूम होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। उन्होंने, मुसलमानों ने समझ लिया कि ये नौटंकी है, ये ड्रामेबाज है। उन्होंने पकड़ के इसको फैंटी लगाई वहाँ पर। ये डिंगे का था मिर्ज़ाई, फ्राडिया, अन्ना मिर्ज़ाई। तो मिर्ज़ाइयों में ये रवायत पाई जाती है पहले से, तो हम तो इनको जानते हैं, हम तो इनके कद से पहचानते हैं। ये कोई भी अपना लिबास पहन के आ जाए ना, कोई भी अपना बुर्का पहन के आ जाए, हम इनकी आवाज़ से इनको पहचान लेते हैं कि ये झूठे हैं, झूठ बोल रहे, फ्रॉड कर रहे, तहकीक करके मिर्ज़ाई हुआ है। आता आज सामने, उसकी तहकीक सारी यहाँ पर फाड़ के रख दी जाती है, उसकी तहकीक आप लोगों के सामने खुल के आ जाती कि ये तहकीक करके मिर्ज़ाई नहीं हुआ, ये ऐसे ही मिर्ज़ाई हुआ है जैसे वो मिर्ज़ा मसरूर का भाई नहीं कह रहा था कि मुझे लड़के का फ़ोन आता है, हेलो इमाम, वांट टू टॉक टू इमाम, मैं इमाम से बात करना चाहता हूँ, आई एम न्यू एमडी, मैं नया एमडी हुआ हूँ, तो मैं बड़ा पसंद किया अहमदियत को, बड़ा मुझे अच्छा लगा है, ले सलात ले सलाम पढ़ना शुरू कहता है। मैं कहता हूँ ओ हेलो हु इज़ द गर्ल, बता लड़की कौन है, किस लड़की के साथ तूने शादी की है, हमारी कौन सी लजना तूने फंसा ली है।
सीधी बात कर। एवं तू अहमदियत बहुत अच्छा मजहब है, अहमदियत बहुत मुझे पसंद है, बंद कर ड्रामा। हमें पता है कितना मजहब है, कितना कोई मजहब है और कितना कोई ये लोग इसको तहकीक करके ज्वाइन करते हैं। ये तो झूठ का पलंदा है, शातमियत का भरा हुआ लिटरेचर है एक। तो इसने क्या तहकीक करके मिर्जाई होना था? ये वही कहानी है जो उसके भाई ने सुनाई थी। तो इसकी ड्रामेबाजी आज सारी की सारी बीच चौराहे में हंडिया टूटती। अगर ये ड्रामेबाज यहाँ आ जाता, वलीद भाई के सामने आ जाता, तो आपको लग पता जाता ये वो ड्रामेबाज है जो यहाँ बराडों पर कहता फिरता है कि मैं तहकीक करके अहमदी हुआ हूँ। ये मुहक्कक और इसकी तहकीक आज सबके सामने आ जाती अगर ये वलीद भाई के सामने बैठ जाता। इसीलिए नहीं आया, उसको पता था, इसको पता था कि हजरत मसीम सिमसम को इल्हाम हुआ लाहौर में एक बेशरम है। यहाँ लाहौर से मुराद ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया था। ये ऑस्ट्रेलिया में एक बेशरम है जिसने ड्रामा किया है कि मैं तहकीक करके मिर्जाई हुआ। लाओ इसको पकड़ के, तलाशे गुमशुदा का बोर्ड लगा हुआ है। आमिर भाई मैं थोड़ी सी बात कर लूँ ताकि रिकॉर्ड पर आ जाए, बात की दुरुस्तगी ना सारी हो जाए, पता लग जाए सबको कि किस तरह ये बात शुरू हुई है और किस तरह ये बात यहाँ तक पहुंची है। अच्छा बाबर भाई, अगर किसी ने रिकॉर्ड करना है तो इसे रिकॉर्ड कर लें, ताकि मेरी गैर मौजूदगी में भी अगर कभी किसी जगह पर ये बात हो तो आप लोगों के पास ये रिकॉर्ड पे हो, आप लोग ये बता सकें कि ये बात शुरू किस तरह हुई थी और ये बात यहाँ तक कैसे पहुंची है, ताकि मैं फिर बता सकूं। तो अगर कोई कर रहा है रिकॉर्डिंग तो सिर्फ मुझे बता दे, फिर मैं शुरू करता हूँ अपनी बात। हो रही है, अब शुरू करें, कोई मसला नहीं जी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, बात ये असल में शुरू इस तरह हुई थी कि मुझे नहीं ताहिर साहब का पता था कि ताहिर साहब कौन है। मेरा इनके साथ सिर्फ इतना ही तारुफ था कि जिस टाइम मैं पाकिस्तान के लिए जा रहा था तो ताहिर साहब की एंट्री हुई थी टिकटॉक के ऊपर, और ताहिर साहब की एंट्री हुई थी अफजल वड़ाई साहब की ब्रॉड के ऊपर, और ताहिर साहब ने बताया था कि वो भी चैम्पियन हैं फ्री स्पीच के, और वो अपना तारुफ ये करवाया करते थे कि मैं मुसलमान हूँ। तो मैं कहता था बिल्कुल ठीक है, बस इतनी सी मेरी उनके साथ मेरा तारुफ था, इससे ज़्यादा मेरा उनका कोई तारुफ नहीं था। और मैं ये बात उनकी सुन के तो मैं पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान से 1 माह से कम ही अरसा मैं पाकिस्तान रहा, और जब मैं वापस आया तो मैं आकर देखता हूँ कि ताहिर साहब जो कहा करते थे कि मैं फ्री स्पीच का चैम्पियन हूँ और मैं जनाब मुसलमान हूँ, वो कह रहे हैं कि जनाब मैंने अहमदियत कबूल कर ली है और मैं तहकीक की है मैंने। तो मैं बड़ा हैरान हुआ और बड़ा परेशान हो गया कि ये 1 महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया। वलीद भाई अस्सलाम वालेकुम। वलीद भाई वालेकुम सलाम। वो आ रहा है, एक मिनट वो आ रहा है आपके पास, उसने मुझे टेक्स्ट किया, वो आ रहा है। अच्छा शुक्रिया। चलें ठीक है, हाँ सही ठीक है जी, फिर मैं थोड़ी देर इंतजार करता हूँ जी। मसला नहीं। ठीक है जी, हाँ, मैं इंतजार करता हूँ। कर ले, कोई मसला नहीं। ये किसके साथ बात हुई है, किसको उसने बताया कि मैं आ रहा हूँ? अस्सलाम वालेकुम अमीर भाई। वालेकुम सलाम। उसने मुझे टेक्स्ट किया, उससे वो कह रहा है मैं सुना रहा हूँ वहाँ पर। आपको मैसेज किया उसने, टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप पर या किस पर? टिकटॉक, व्हाट्सएप नहीं, वो टिकटॉक में। अभी आपके पास उसका स्क्रीनशॉट है? हाँ अभी उसका स्क्रीनशॉट है? मैं अभी आपको भेजूंगा। वलीद भाई को क्यों नहीं मैसेज किया? जो होस्ट है, जिसके साथ इंटरव्यू तय हुआ है, उसको मैसेज करने की बजाय आपको मैसेज किया? बिकॉज अमीन नजीर भाई उसने कहा कि मुझे ये बात हुआ था 3 वीक पहले और 1 वीक पहले हुआ था, इसलिए समझ नहीं आया था। You forgot it happened weeks ago. That's what he told me. हाँ। अच्छा वो उसका चले, मैं कोई बात नहीं, screenshot मैं कोई सख्त बात नहीं करता, लेकिन मैं बात जो है वो करना चाह रहा हूँ तो वो मैं बात कर लेता हूँ ताकि वो आ भी जाए। तब भी मैंने ये बात शुरू में करनी है, तो मैं ये बात करना चाहता हूँ। इसके अंदर कोई गाली नहीं है, कोई बुरा भला नहीं है, लेकिन चूंकि बात बतानी लाजमी है कि बात असल में थी क्या, और वो बतानी चाहिए, वो लाजमी बात होती है। तो खैर मैं जब इधर वापस आया, मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ कि मैं वापस आया लाहौर से, पाकिस्तान से। जब मैं वापस आया तो मैंने आके देखा कि जी ये भाई साहब फरमा रहे हैं कि जी मैं अहमदी हो गया हूँ और मैंने मिर्जा साहब पर ईमान ले आया हूँ और मैंने तहकीक की है। तो मेरे दिल में ये तजस्सुस सा एक पैदा हुआ कि यार क्यों नहीं इससे बात करनी चाहिए,
तो पता लगे कि भाई इन्होंने क्या तहकीक की है और क्या अपना इन्होंने क्या तहकीक की है और किन किन चीज़ों के ऊपर ये ईमान लेकर आए हैं। क्या असल में इनको इन दावों का पता भी है कि मिर्ज़ा साहब के क्या दावे हैं, या इन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे किसी और वजह से इन्होंने अहमदियत कबूल की है। अभी मैं इसी कश्मकश में था तो इन्होंने हमारे जो साकी भाई हैं उनके साथ इन्होंने कुछ 1 to 1 अपनी ब्रॉड पर किया। तो उसको कहा तो ये गया कि कुछ सवाल हैं साकी भाई के, तो उस पर मैं जी जवाब दूंगा, और मेरे कुछ सवाल हैं उस पर साकी साहब जवाब देंगे। तो वो एक किस्म का बाद में ये हो गया कि वो जैसे कहते हैं आपके वहां पर जंग और जदल और वही हो गया, और उसने साकी को नीचे उतार दिया। उसके बाद मैंने इसको अप्रोच किया थ्रू सम रेफरेंस। तो जब मैंने इसे अप्रोच किया तो मैंने इससे थोड़ी बहुत बात की। पहला मेरा तारुफ इसके साथ हुआ, थोड़ी बहुत मैंने बातचीत की इसके साथ। उस बातचीत को करने के बाद मैंने इसको फ्रंट से खुद ये कहा कि मैं आपका जनाब अपना साकी की तरह, जिस तरह आपने साकी से बात की है ना, इस तरह मैं आपसे भी बात करना चाहता हूँ। तो आप मुझे बताएं कि मैं किस टाइम आपके पास आ जाऊँ या आप मेरे पास आ जाएं, तो हम इस बात को इसी तरह ही करें। मेरे भी चंद सवाल हैं, आप अपने सवाल कर लेना, मैं अपने कर लूंगा, तो हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो इन्होंने मुझे, ये मैं सीधी बात ही आपको बताऊंगा कि इन्होंने मुझे इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं साकी की तरह वलीद भाई आपसे बात नहीं करना चाहता। मैंने उसके बाद इनको कोई बात नहीं की। उसके बाद इसकी अपनी एक ब्रॉड चल रही थी जिसके ऊपर इनके अपने एक भाई हैं मलिक साहब, उन्होंने मेरी तरफ ये बात मंसूब की कि उन्होंने कहा कि वलीद जो है वो ताहिर से मुनाजरा करना चाहता है, क्योंकि वो अब्दुल बड़ाई साहब की ब्रॉड पर मेरी इसकी बात हुई थी। मुनाजरा करना चाहता है तो राजा साहब आप ये देख लें। राजा साहब मेरे बारे में, क्योंकि राजा साहब का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ये पब्लिकली बात ही की है, इसलिए मैं राजा साहब का भी नाम ले रहा हूँ। तो राजा साहब मेरे बारे में कुछ कमेंट करने लगे कि मैं ताहिर साहब से मुनाजरा करना चाहता हूँ। जैसे ही राजा साहब कोई कमेंट करने लगे तो मैंने राजा साहब को नीचे से मैसेज किया कि राजा साहब अभी कमेंट ना करें, मुझे ऊपर आ लेने दें। तो खैर उन्होंने मेरी कॉल पिक की और मैं ऊपर गया। तो मैंने राजा साहब को कहा कि मैंने कहा राजा साहब मैं कोई मुनाजरा नहीं करता, आपको पता है, मैं सिर्फ एक गुफ्तगू करना चाहता हूँ, एक कन्वर्सेशन है कि कुछ सवाल इनके थे, कुछ सवाल मेरे हैं, तो उस पर कुछ बात कर लें। उसको आप किसी चीज़ का भी नाम दे लें, इंटरव्यू कह लें, उसको मुनाजरा कह लें, उसको कुछ भी कह लें, वो इस तरह की बात ही है। खैर वहां पर हमारी बात खत्म हो गई। उसके कुछ दिनों के बाद मेरी ताहिर साहब से दोबारा गुफ्तगू हुई। अच्छा मैं पिक कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज कोई आके माइक ना अभी खोले। तो मैंने क्या नाम है अपना ताहिर साहब से मेरा दोबारा राब्ता हुआ। मैंने ताहिर साहब से दोबारा बातचीत की और मैंने ताहिर साहब को कहा कि ताहिर साहब आपने इस तरह करके इंटरव्यू करना चाहता हूँ आपका मैं, तो आप मुझे बताएं कि मैं आपका इंटरव्यू कर लूँ। तो ताहिर साहब ने मुझे उस टाइम ये कहा कि जी बिल्कुल आप मेरा इंटरव्यू कर लें। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त होगी बात। तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा तो मैंने ताहिर साहब को ये कहा कि ताहिर साहब आपने क्या नाम है अपना इंटरव्यू देने के लिए मेरे साथ रजामंदी की है, तो आप मुझे ये बता दें कि क्या नाम है आपको मैं किस टाइम फ़ोन कर सकता हूँ ताकि हम इंटरव्यू की कुछ बातें डिस्कस कर लें, किस टाइम हमने इंटरव्यू करना है और आप किस टाइम मेरे लिए अवेलेबिलिटी दे सकते हैं। तो इस तरह की मेरी इनसे थोड़ी सी बात हुई। तो इन्होंने मुझे कहा कि फ़लाँ दिन को आप मुझे ऑस्ट्रेलिया के टाइम जो मेरा वोलागोंग का टाइम है उस टाइम आप मुझे इस टाइम पे कॉल कीजिएगा, तो हम फिर उस टाइम बात करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल दुरुस्त हो गया। तो उस टाइम मेरी ताहिर साहब से बात हुई। जब मेरी ताहिर साहब से बात हुई तो मैंने ताहिर साहब से पूछा, मैंने कहा ताहिर साहब बताएं आपकी, मैंने ब्रॉड पर आके ये बात पूछी थी, क्योंकि ये बात मैंने उनसे ब्रॉड पर पूछी थी, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पूछी थी कि आपने मुझे इंटरव्यू देना है तो क्या आप राजी हैं। तो इन्होंने कहा था जी बिल्कुल मैं आपको इंटरव्यू देने के लिए राजी हूँ, आप मुझे शाम को कॉल कर लेना, मैं आपको टाइम दे दूंगा, उस टाइम में आप मेरा इंटरव्यू कर लेना। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैं शाम को ताहिर साहब को फोन करता हूँ और ताहिर साहब को मैं बताता हूँ कि ताहिर साहब कि आपने मुझे इस तरह कहा था ब्रॉड पर, तो आप लिहाजा मुझे बताएं कि आप किस टाइम मुझे इंटरव्यू दे सकते हैं। तो इन्होंने मुझे खुद ये टाइम दिया। इन्होंने कहा कि इस संडे को अवेलेबिलिटी मेरी भी है। मैंने कहा मेरी भी अवेलेबिलिटी है। मैंने अपना भी जॉब का रोस्टर चेक किया, ताहिर साहब ने अपना भी चेक किया और ताहिर साहब ने मुझे ये कहा कि इस दिन बिल्कुल हम इंटरव्यू कर लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया टाइम जो है वो 8 बजे और जो पाकिस्तानी टाइम है वो 2 बजे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक हो गया। इन्होंने कहा कि उसके अंदर मैं अपनी जॉब से वलीद भाई आपके लिए 2 घंटे का ऑफ भी ले लूंगा अगर मुझे ऑफ लेना पड़ा, और मैं आपके साथ आके गुफ्तगू करूंगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक हो गया। इसके अंदर उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की मुझे।
انہوں نے کہا کہ ولید بھائی، میں نے ان کو یہ پوچھا، میں نے کہا یار طاہر صاحب بات یہ ہے، کیا آپ کے اوپر کوئی پریشر وغیرہ یا کوئی معاملات تو نہیں ہے؟ تو طاہر صاحب نے مجھے کہا کہ مجھے کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بڑے خاص لوگ ہیں انہوں نے مجھے منع کیا ہے، ابھی میں نام اس لیے نہیں لینا چاہ رہا کہ کیا پتہ طاہر صاحب آ جائیں، اور جب وہ آئیں گے تو میں ان سے پھر یہ ڈائریکٹ باتیں پوچھ لوں گا، اس لیے نام لیے بغیر کچھ باتیں بتا رہا ہوں میں۔ تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ولید صاحب میں کیا نام ہے، میرے اوپر کچھ لوگوں نے مجھے یہ منع کیا ہے، اور بالکل باقاعدہ آپ کا نام لے کے منع کیا ہے کہ ولید صاحب بہت میٹھی بات کرتے ہیں، ان سے ذرا بچ کے رہنا۔ تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا یار دیکھو، میٹھی بات کرنے والے سے بچنا تو نہیں چاہیے، میٹھی بات کرنے والے کو تو سوالوں کا جواب دینا چاہیے۔ میں کون سا کوئی گالی دے رہا ہوں مرزا صاحب کو، یا میں کون سا کوئی آپ کے ساتھ کوئی برا کام کروں گا؟ آپ نے آنا ہے، میں نے سوال کرنے ہیں، آپ کا دل کرے گا اس کا جواب دینا، آپ کا دل کرے گا تو آپ میرے سے ٹائم لے لینا، بعد میں جواب دے دینا۔ تو میں نے کہا بالکل درست ہوگی بات۔ اس کے بعد یہ بات ہماری طے ہو گئی، تو میں نے انہیں کہا کہ اب اگر آپ نے مجھے یہ ٹائم دے دیا ہے تو انہوں نے مجھے کہا بالکل آپ وہ پوسٹر بنا لیں، اس پوسٹر کو بنا کے آپ مجھے سینڈ کر دیں، سینڈ کر کے آپ اس پوسٹر کو پبلش بھی کر دیں، ایڈورٹائز بھی کر دیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں نے اس پوسٹر کو بنایا، اس پوسٹر کو بنا کے میں نے اس کو پبلش کیا، پبلش کر کے میں نے طاہر صاحب کو بھی وہ پوسٹر بھیجا کہ طاہر صاحب بھی اپنی کچھ دیکھ لیں اس کے اندر، کوئی اگر انہوں نے کوئی کمی پیشی کرنی ہے یا میں نے کوئی لفظ غلط لکھے ہوئے ہیں اس پوسٹر کے اندر تو طاہر صاحب مجھے بتا دیں گے، میں اس پوسٹر کو ٹھیک کر کے دوبارہ اپلوڈ کر دوں گا۔ اس بات کے بعد طاہر صاحب سے میں نے ایک دو دفعہ رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ دیکھ لوں کوئی بات چیت ہو، لیکن طاہر صاحب نے میرے سے رابطہ نہیں کیا، اور میں نے سمجھا کہ شاید وہ بزی ہوں گے، کہیں نہیں رابطہ کرنا چاہ رہے۔ ہر بندہ آسٹریلیا میں ہوتا ہے، بزی ہوتا ہے، اپنی جابس کا معاملہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے اس کے بعد کیا نام ہے اپنا آج اپنی براڈ آن کیا اور میں نے طاہر صاحب کو بھیج دیا۔ اس کے بیچ میں نے ایک دو لوگوں کو انگیج کیا کہ طاہر صاحب سے میری بات کروا دیں، کہ میں ان کو پوچھ لوں کہ ان کے دماغ میں کوئی نئی بات تو نہیں چل رہی، یا جس پریشر کی بات وہ کر رہے تھے، وہ ایک پریشر کی بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگ جو بڑے خاص اور معتبر ہیں اس ٹک ٹاک کے اوپر، جن میں ایک نام میں لے سکتا ہوں آپ کے سامنے، نام نہیں بلکہ صرف اشارتاً کر دیتا ہوں کہ وہ کینیڈا سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑے خاص بندے ہیں، وہ پچھلے دنوں ہی وہ آئے ہیں ٹک ٹاک پہ 6-8 مہینے پہلے۔ تو انہوں نے تو باقاعدہ میرا نام ہی لیا تھا ان کے سامنے، اور ایک صاحب جو ہیں وہ انگلینڈ سے ہیں، جو یہ طاہر صاحب نے مجھے بتایا۔ تو میں نے ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ طاہر صاحب کوئی پریشر آپ کے اوپر آ تو نہیں گیا؟ اگر کوئی آ گیا ہے تو میرے سے کوئی بات چیت کر لیں تاکہ ہم اس کا کوئی مڈل راستہ نکال لیں اور کوئی بات چیت کو ہم آگے چلا سکیں۔ لیکن طاہر صاحب نے میرے ساتھ رابطہ نہیں کیا، اور میں اپنے اس نے زن میں یہی سمجھتا رہا کہ یار وہ بزی ہوں گے۔ اس کے بعد میں نے 2 لوگوں کو بھی انگیج کیا کہ یار شاید کہ کیا نام ہے اپنا کوئی بات چیت ہو جائے تو چلو کچھ پتہ لگ جائے طاہر صاحب کا، لیکن طاہر صاحب نے رابطہ نہیں کیا، اور ان لوگوں نے وہ ناکام ہوئے میرا طاہر صاحب کے ساتھ بات کروانے میں۔ اس کے بعد آج براڈ لگانے کا اصل مقصد کیا تھا؟ شک تو مجھے یہ تھا، مطلب یہ شک آپ کہہ سکتے ہیں، یقین بھی کہہ لیں، جو دل کرتا ہے آپ کہہ لیں، شک تھا مجھے کہ شاید طاہر صاحب نہیں آئیں گے، کیونکہ اس کے بیچ میں انہوں نے ایک سٹنٹ بھی کیا، اور کسی نے آ کر کہہ دیا کہ جی طاہر صاحب نے جماعت احمدیہ کو چھوڑ دیا ہے، اور ایک سٹنٹ سا کر لیا پبلسٹی کہ جناب وہ کوئی اس کا دوست آیا، انہوں نے یہ سٹنٹ کیا کہ جماعت احمدیہ چھوڑ دی ہے، اس نے جی واٹس ایپ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا ہے، اب وہ دوبارہ ٹک ٹاک پر نہیں آئے گا، فلانا ٹمکانا جو بھی تھا۔ اور اس کے ہی 15-20 منٹوں کے بعد بھائی صاحب نے اپنی براڈ آن کر لی، اور مجھے سمجھ لگ گئی کہ یہ اٹس آل اباؤٹ پبلسٹی سٹنٹ، یہ صرف ایک پبلسٹی سٹنٹ تھا، وہ کرنا چاہ رہا تھا لائم لائٹ میں آنے کے لیے۔ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس ٹک ٹاک کے اوپر شاید وہ اکیلا ہی بندہ ہے جو چرب زبان ہے، شاید وہ اکیلا ہی ہے جس کو بات کرنے کا شوق ہے، شاید وہ اکیلا ہی ہے جو لفظوں کے ساتھ کھیل سکتا ہے۔ لیکن اسے یہ شاید نہیں پتا تھا، یہ شاید لوگوں نے اسے بعد میں بتایا کہ یار اصل میں تو یہاں جب ولید کے سامنے آ کر تم نے بیٹھنا ہے تو اس نے الفاظوں سے نہیں کھیلنا، اس نے تم سے سیدھے سوال پوچھنے ہیں، اس نے تم سے یہ پوچھنا ہے کہ مرزا صاحب نے کیا دعویٰ جات کیے ہیں وہ لسٹ بتاؤ مجھے، اس نے تم سے یہ پوچھنا ہے کہ مرزا صاحب نے یہ جو لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ غلطی ہو گئی تھی اور ان کو اس کو متنبع نہیں کیا گیا اور وہ اسی غلطی میں معاذ اللہ فوت ہو گئے، کیا تمہارا یہ عقیدہ ہو گیا ہے؟ تو اس کے پاس اس کے جواب کیا ہونے تھے؟ آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا، تو اس نے کہاں دینے تھے یہ جواب؟ پھر اس سے میں نے پوچھنا تھا کہ تمہارا تعارف کیا ہے، تم آسٹریلیا میں کہاں رہتے ہو، تم کیا پڑھ چکے ہو، تم کیا کر رہے ہو اس ٹائم؟ تو اسے شاید کسی نے بتایا، یہ کسی نے پریشر ڈالا کہ بھائی صاحب نہ جانا، تو وہ آج بس نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے،
वरना इस टिकटॉक के ऊपर वो रोज अपनी ब्रॉड ऑन करता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई मसला नहीं है, वो बिल्कुल खुशी से आता है, वही पब्लिसिटी स्टंट करता है रोज सुबह को। उस बंदे के साथ वो पब्लिसिटी स्टंट करता है जिसका बारे में वो ये क्लेम करता है कि मैं उसकी इज्जत अपने वालिद से ज्यादा करता हूं या अपने वालिद जितनी करता हूं। तो वो बंदा जो अपने वालिद, जिसको ये कहे कि मैं इसका एहतराम अपने वालिद जैसा करता हूं, और फिर उसके साथ वो पब्लिसिटी स्टंट रोज करे, रोज उसके साथ बुरा बुरा हरकत करे, रोज ये करे, और फिर वो जाके ये अपनी ब्रॉड पर कहना शुरू कर दे कि नहीं वो वड़ाई साहब तो अब पॉलिटिक्स करने लग गए हैं, वड़ाई साहब जो हैं वो इम्तियाज साहब के मुरीद हो गए हैं, वो सिर्फ साइड ही इम्तियाज साहब की लेते हैं। तो मैं देखना चाहता था ना कि ताहिर साहब आए आज, मैं आपको दिखाता हूं कि कौन किसका मुरीद हो गया है। आ जाते आप 1 मिनट के लिए, जरा 2 घंटे के लिए आते तो मैं आपको बताता कि बात करने का तरीका क्या है, बात की किस तरह जाती है। इज्जत प्यार से बात जब की जाती है तो फिर सामना खुल के आ जाता है, फिर पता लग जाता है कि इंसान के अंदर कितना इल्म बड़ा हुआ था। जब उसने ये शौक ये चढ़ाया ना, ये उसने ये रखा सामने दावा कि मैंने बड़ी तहकीक की है मिर्जा साहब को मानने में, तो मैं पूछता फिर आपसे, फिर आप मुझे बताते, फिर मैं सुनता, और फिर मैं आपको बताता कि ये आपकी तहकीक ठीक है कि आपने बिल्कुल गलत तहकीक की हुई है। फिर मैं आपको पूछता कि वो इस 1 महीने के अंदर आपने केड़ी ऐसी तहकीक कर ली कि मैं अभी पाकिस्तान गया हूं और 1 महीने में मैं वापस आ गया हूं और आपकी तहकीक कंप्लीट हो गई, आपने जन्नत जहन्नम के फैसले कर लिए। अभी ताहिर साहब कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं नहीं करना चाह रहा, और आपको भी पता है और मुझे भी पता है। लिहाजा बेहतर यह है कि आपके बारे में जो मैंने हुस्न ज़न रख के इस ब्रॉड को ओपन किया और आपने खुद रजामंदी की, आपको चाहिए था कि आपको कोई मसला था आप मेरे से राब्ता करते, आप मेरे से आके बात करते। मैं आपको कोई मसला नहीं था, मैं इस ब्रॉड को ना ओपन करता, मैं कह देता कि भाई उनका कोई प्रॉब्लम हो गया है, उनका कोई इशू हो गया है, वो बिजी हैं, उनका कोई और मसला है। भाई 1000 रास्ते निकल सकते थे, लेकिन आपने एक ही रास्ता चूज किया है जो कि बड़ा जबरदस्त रास्ता है। मेरे ख्याल में आप लोगों को यही रास्ता ही समझ में आता है और यही रास्ता आपको अच्छा लगता है कि बगैर बताया जाए, बताए बगैर चुप करके चला जाए। क्यों? क्योंकि सवालों के जवाब तो नहीं दे पाते ना आप लोग। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम है ना आप लोगों के अंदर कि जब बराबरी की सतह पर बात होगी, जब सीधे सवाल किए जाएंगे, जब हम लोग साहिल बन जाएंगे मुसलमान और आपको मुजीब बनना पड़ जाएगा 1-2 घंटे के लिए, तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना। क्योंकि आपने तो सारी जिंदगी यही देखा है इस दुनिया के अंदर कि साहिल आपने ही बनना है सारी जिंदगी और हमने मुजीब रहना है। ये पहली दफा आपको शायद किसी ने ये बताया कि भाईजान आप साहिल नहीं हैं, आप मुजीब हैं, आपने जवाब देने हैं। वलीद ने आपको मिर्जा साहब की किताब खोलकर सामने दिखानी है और आपको सामने पढ़ानी भी है वो किताबें जिन किताबों को आपने अभी तक नहीं पढ़ा, और आपने सिर्फ ये दावा किया है, आपने सिर्फ अभी तक ये दावा किया था कि आपने उन किताबों को पढ़ लिया है। लेकिन मैंने आपको बताना था कि उन किताबों को जिसको आपने पढ़कर ये दावा किया है कि आपने अहमदियत कबूल किया, आपने नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ाना था आपको। आपके लिए मैंने 3 किताबें पढ़ी भी हैं और उनके स्कैन निकाल के सिर्फ आपके लिए रखे हुए हैं सामने कि आप आए मेरे सामने तो मैं आपको बताऊं कि मिर्जा साहब ने उन 3 किताबों में क्या लिखा हुआ है, तो मैं आपको बताता। लिहाजा मेरी आखिरी बात यह है कि ताहिर साहब, इंसान हमेशा अपनी गुफ्तार से पहचाना जाता है, अपनी बात से पहचाना जाता है। इंसान वही इंसान कहलाता है कि जब अपनी कोई कमिटमेंट कर ले उसको पूरा करता है, और अगर वो पूरा ना कर सके तो अपनी ब्रॉडें खोलकर वहां पर अकेला शेर नहीं बना जाता। उसके ऊपर वो मेरे ऊपर उस्ताद साहब बैठे हैं ना, वो एक शेर कहते होते हैं, हमें तो वो शेर पूरी तरह नहीं आता लेकिन फिर भी कोई थोड़ा बहुत सुना देता हूं कि पज्जी तेरी कोड़ी कल्ले मिठिया। किस हमारे साथ आके बैठे, यहां मेरे साथ आके आप बैठते तो मैं आपके साथ बात करता, फिर मैं आपको बताता कि आप क्या बात कर सकते हैं और मैं क्या बात कर सकता हूं, और आप किस जगह पर स्टैंड कर रहे हैं और हम किस जगह पर स्टैंड कर रहे हैं, हमारा अकीदा क्या है और आपका अकीदा क्या है, तो मैं आपको बताता। लिहाजा मेरी बात खत्म हुई है, अब किसी भाई ने बात करनी है तो वो बात कर ले। ਕੱਲੀ ਘੋੜੀ ਭੱਜੇ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਿਆ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੱਲੀ ਘੋੜੀ ਭੱਜੇ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਿਆ, घोड़े साढ़े ना पजाऊं पता फिर लगूगा। पता तो तब चलेगा ना जब घोड़े के साथ घोड़ा दौड़ता है। अकेले वो हमारे गांव में भी एक मिसल थी यार, पप्पू मलिक के आखू है
ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। हाँ बोली तो जी क्या कह रहे हैं भाईजान? मैं आख्या मिसाल सिर्फ घोड़ियां नहीं दे सकना बंदा, या और भी किसी चीज़ां नहीं दे सकना। नहीं बस इन्नी मिसाल ठीक है मेरे ख्याल दे विच। नहीं अपेरेंटली मिसाल ते का देखो ताल्लुक गल नहीं, गल मेरी गौर नाल सुन लेना। मिसाल का मफहूम एको ही होंदा है। इलाकियां विच वेंद के ना वो जिस चीज़ ते दित्ती हुंदी वो बदल वेंदे ने। हुण बाबा गुजरातिया है ना, इन्हां दे पासे निज़ाबाजी जाने कौमी खेल इलाके का ताल्लुक रखने ने। आ पुछ लो उस कि निज़ाबाजी गुजरात मंडी के इलाके का खेड है ना, एक कौमी खेड एक इलाके की रखता है। हाँ दूजा बंदा तीजा बंदा इहदा तकने का शौकीन ही होएगा तो खेडने का भी शौकीन होएगा। गल कर लो अबू आप। बकर अच्छा साहिल भाई, भाई नीचे अगर आप मौजूद हैं तो आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे हम शो करवा दें, नीचे टेक्स्ट लिख के बता दीजिएगा। अबू बकर मीर भाई और दीगर साथी, बाबर भाई, मलक इमरान, जितने भी साथी हैं, पप्पू मलक को अभी आपने कुछ नहीं कहना। उसने मेरे साथ वादा किया है कि मैं मिर्ज़ाइयों की बराड पर जाकर कभी भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई बक नहीं करूँगा, मेरा वादा है। तो आप उसके ख़िलाफ़ कोई लफ्ज़ ऐसा नीचे ना लिखे। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं नहीं देख रहा, वो कह रहे हैं मुझे बुरा भला कह रहे हैं। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर इंटरव्यू एक बंदे का होना है, उसके लिए बराड लगी हुई है, लेकिन उसने बात करनी है। मैं पप्पू मलक साहब बात करता हूँ, ज़रा 2 मिनट ठहर जाए। लेकिन जो बंदा थोड़ा सा आमिर भाई हम इस मौक़िफ़ को ख़त्म कर लें तो फिर हम किसी और तरफ बात करते हैं। मेरा तो ये ख्याल है। हाँ जी, मैंने तो अपनी बात कर ली है। आप उस पर कोई ऐड करना चाहते हैं, कुछ बात और करना चाहते हैं तो आप कर लें, वरना मैंने तो मेरे ख्याल में काफ़ी बात कर ली है। नहीं, बहुत सारी बातें हैं जो ऐसे बंदे के सामने मुझे यकीन है कि आप रखते। अगर वो बंदा आ जाता तो आप उस बंदे के सामने रखते और उससे पूछते कि भाई तुमने, पता नहीं हमें कि तुम मुसलमान भी थे या नहीं थे, लेकिन मुसलमान और मिर्ज़ाई ये दरिया के 2 किनारे हैं जो कभी भी आपस में नहीं मिल सकते। ऐसा तो नहीं है ना कि ये इस्लाम के अंदर कोई छोटा सा ग्रोह है, कोई मुसलमानों के अंदर कोई फ़िरका है। इस्लाम से निकल कर तुमने जो कुफर इख्तियार किया है, क्या तुम्हारे ये तमाम शातमियत वाले गंदे अकायद हो गए हैं जो हम गंदे अकायद मिर्ज़ाइयों के देखते हैं, सुनते हैं, उनको महसूस करते हैं, उनकी बदबू सूंघते हैं। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने कहा था ना कि ये एक मुस्तकिल लानत है। इस मुस्तकिल लानत को आपने गले में लटका लिया है, वाक़तन लटका लिया है। इस लानत का तोक आपने गले में लटकाया तो कौन सी तहकीक करके लटकाया? वो कौन सी तहकीक है? कहाँ से आपको पता लगा कि इस्लाम गलत है और मिर्ज़ाइयत सही है? इस्लाम को झूठा समझकर कादियानियत को सच्चा समझा तो वो दलील पेश करो। हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो कि तुमने इस्लाम छोड़कर मिर्ज़ाइयत की लानत गले में लटकाई है, इस मुस्तकिल लानत को गले में डाला है, तो दलील तो पेश करो, दिखाओ तो सही इस्लाम में क्या गलती थी और मिर्ज़ाइयत के अंदर कौन सी तुम्हें खूबी और इस्लाह दिखाई दी है। हमारी नज़र में तो अगर कोई बंदा इस्लाम को छोड़कर बुत परस्ती में चला जाए, वो खुदा का बेटा मान ले मसीह अलैहिस्सलाम को, वो यहूदी हो जाए, क्रिश्चियन हो जाए, हिंदू हो जाए, सिख हो जाए, वो भी इस लानत से बेहतर है। दुनिया की सबसे बड़ी लानत ये मिर्ज़ाइयत है। इससे बड़ी लानत पैदा ही नहीं हुई। इसके बजाय अगर कोई बंदा हिंदू होने का ऐलान कह देना कर दे तो कोई बंदा कहे कि शायद इसने कहा कोई लगा होगा, इसको सही लगा होगा। लेकिन मिर्ज़ाइयत को इख्तियार करना, इस्लाम को झुटलाकर, इमामुल अंबिया की सच्चाई को छोड़कर मिर्ज़ा कादियानी को सच्चा कहना, नबी पाक की कसम को छोड़कर, बुखारी में आता है ना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर कहा कि मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, क़यामत से पहले तुम में ईसा इब्ने मरियम नाज़िल होंगे।
ایک بندہ جو قادیانیت پر لعنت بھیج کر اسلام کی طرف ہے، اس نے کہا میں نے بخاری میں یہ حدیث پڑھی، تو میں نے کہا بھی ایک طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہے، ایک طرف مرزا قادیانی کہتا ہے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے یا لاش، اس کی قسم ہے کہ مجھے خدا نے کہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تو فوت ہو گیا، تو نے اس کی جگہ آنا تھا۔ کہتا ہے میں نے سوچا کہ دونوں میرے پاس، میں تو مرزا قادیانی کو بھی نہیں ملا، نبی پاک کو بھی نہیں ملا، تو دونوں میں سے کس کی قسم پر اعتبار کیا جائے؟ کہتا ہے میں نے دل میں ہاتھ رکھ کے دل پہ سوچا تو میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ سید الصادقین تو وہ ہیں، سب سچوں کے سردار تو وہ ہیں جن کی قسم پر اعتبار کرنا چاہیے، ان جیسا تو سچا کوئی ہے ہی نہیں، ہمیں ان کی قسم پر اعتبار کرنا چاہیے، ہمیں کسی جھوٹے شخص کی قسم پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ اگر وہ میدان میں آتا، آپ کے سامنے بیٹھتا، تو یہ ساری باتیں آپ اس سے پوچھتے۔ ابھی جو آپ کے پاس اسکرین شاٹ ہے میں دیکھ نہیں پا رہا کیونکہ ڈرائیو کر رہا ہوں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے آپ پڑھ کے سنا دیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی آ رہے ہیں۔ بھائی 10 بجے کا انٹرویو کا ٹائم ہے، اتوار کا دن ہے، 2 ہفتے پہلے کا ٹائم طے ہوا ہے، یہ ڈرامہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی مزید وہ اس کو سسپینس میں ڈال کر اب سے آلموسٹ 45 منٹ پہلے کے ہیں۔ اس پہ میں بات کرتا ہوں عامر بھائی، میں کرتا ہوں اس پہ بات، صرف 1 منٹ دیں مجھے۔ تو یہ مطلب کوئی لاجک بنتی نہیں ہے کہ بھائی بندہ بھول گیا انٹرویو کے لیے۔ یہاں سے اتنی براڈ شیئر ہوئی ہے کہ یہ نیچے جو 422 شیئرنگ نظر آ رہی ہے، 422 بار یہ براڈ شیئر ہوئی ہے۔ ہوپ فلی اس میں سے شاید 300-400 بار تو اس کے ساتھ شیئر کی ہوگی ساتھیوں نے، کیونکہ ظاہر ہے اس کا انٹرویو ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ولید بھائی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا بھی ہے دوسری براڈوں پر اس کو بیٹھے ہوئے، پھر اس کو میسج کیا، وہ پہلے سے تھڑکا ہوا ہے، پہلے سے اس کو کسی نے تھڑکایا ہوا ہے کہ نہ جانا، جب تو نے جھوٹ بولا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا ہے تو دھوکہ تیرا پکڑا جائے گا۔ جب تو نے فراڈ کیا ہے کہ تو تحقیق کر کے مرزائی ہوا ہے، اسلام کو جھوٹا سمجھا اور اس قادیانیت کو تو نے سچا سمجھا، اتنا بڑا جھوٹ اللہ کی اس دھرتی پر، اس کو تو گوزے شتر، پتہ ہے گوزے شتر کیا ہوتا ہے؟ اونٹ جب ہوا خارج کرتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں اردو میں گوزے شتر، نہ زمین پہ نہ آسمان پہ، ایسا یہ گوزے شتر ہے کہ نہ زمین میں نہ آسمان میں، بیچ میں معلق ہے، درمیان میں۔ یہ تو ایسا گوزے شتر ہے کہ بھئی میں نے اسلام کو چھوڑ کر مرزائیت کی لعنت گلے میں لٹکا لی۔ کون اس دور میں مانتا ہے؟ کون اس جھوٹ کو قبول کر سکتا ہے یا پسند کر سکتا ہے یا اس پر اعتبار کر سکتا ہے کہ اس بندے نے کوئی تحقیق کی ہوگی؟ ضیاء بھائی یہ تحقیق پلیز تو یہ جو سا آپ کا ضیاء بھائی یہ جو آپ کا اسکرین شاٹ ہے یہ پلیز مجھے بھیجیں، کیونکہ یہاں پر میں صحیح پڑھ نہیں پا رہا، میں اس کو پڑھ کے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ 2-3 باتیں میں نے پڑھ لی ہیں، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ ویری ان پروفیشنل ہے، تو میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ان پروفیشنل تھا کہ پروفیشنل تھا۔ کیا ان پروفیشنل ہو گئے ہم؟ آپ نے میرے خیال 3 لوگوں کے انٹرویو پہلے کیے ہیں، تو جب بھی انٹرویو ہوتا ہے بندہ اکیلا آتا ہے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، سب لوگ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ اس سے سوال جواب کرتے ہیں اچھے انداز سے، اور اس کی آزادی ہوتی ہے، وہ جو چاہے جواب دے۔ لیکن ایک بندہ ہی جھوٹا ہے، اس نے جواب دینا کیا ہے؟ وہ تو کسی بات کا جواب دے ہی نہیں سکتا، آپ کے سامنے بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ پہلے سوال پر ہی وہ کہتے ہیں نا پہلی چوری تو پہلے ہی پھا، پہلے سوال پر ہی ٹھوس ہو جانی تھی، اس لیے نہیں وہ ہے، سیدھی بات ہے، خام خواہ ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے اس بندے اچھا عامر بھائی یہ مجھے پوسٹر مل گیا ہے، وہ مجھے اسکرین شاٹ مل گیا، میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں پہلے۔ اچھا پہلے وہ لکھتے ہیں why Walid did not contact me first, he must check with me, very unprofessional, we had chat weeks back, مجھے یاد بھی نہیں تھا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ یہ جو ان سی میسج کی یہ جو بات ادھر کر رہے ہیں، یہ طاہر صاحب ادھر میرے سامنے آگے بیٹھ کے کریں نا بات یہ والی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ویری ان پروفیشنل میری طرف سے تھا کہ ویری ان پروفیشنل ویری ان ایتھیکل آپ کی طرف سے تھا، یہ میں نے آپ کو بتانا تھا نا۔ کیونکہ میرے پاس وہ اسکرین شاٹ پڑے ہیں، چاہیں گے تو میں ابھی ادھر لگا کر دکھاؤں گا آپ کو
کہ میں نے آپ سے خود رابطہ کرنے کی کوشش کی. پھر صرف میں نے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی, آپ سے 2 لوگوں نے, آپ کی جماعت کے لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا. ابھی اس بات کو 48 گھنٹے بھی نہیں گزرے, تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یاد نہیں تھا؟ آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے کال کی جب میں نے ان کا میسج آپ تک پہنچایا کہ اسے کہیں کہ میرا فون اٹھا لے, کم از کم میرے سے بات تو کرے کہ کیا مسئلہ ہے, کوئی پرابلم ہے, کوئی ایشو ہے, کوئی بات ہے, کس طرح کرنا ہے. اس دن آپ بیزی نہیں ہو, اس دن آپ بیزی ہو, فری نہیں ہو, چلو اس کو کوئی آگے پیچھے کر لوں, کوئی بات کر لوں. یہ میری طرف سے انپروفیشنل تھا؟ میں نے اس کے اندر کون سی انپروفیشنل کیا ہے؟ آپ نے ایک کمٹمنٹ کرنے کے بعد میرا تو یہ بھی حق نہیں تھا کہ میں آپ سے دوبارہ رابطہ کرتا. مجھے یہ سیدھی براڈ آن کرنی چاہیے تھی, کیونکہ جب مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کا انٹرویو لینا تھا تو آپ کو کیوں نہیں تھا یاد جو میں نے آپ کو پوسٹر بھی بھیجا تھا؟ اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے انپروفیشنل کام کیا ہے, اور ابھی تو اس بات کو 48 گھنٹے نہیں گزرے. آپ کو پتا ہے نا آپ کے ساتھ کس نے رابطہ کیا تھا انگلینڈ سے؟ میں نام نہیں لینا چاہ رہا ابھی فی الحال, اور نہ مجھے اس جگہ تک لے کر جائیں کہ میں نام لوں. پھر میں نے جب آپ کو پیغام پہنچایا کہ یار میری ان سے بات کروائیں, اور آپ نے یہ کمٹمنٹ بھی دی انہیں کہ ٹھیک ہے میں ولید کو فون کرتا ہوں, خود میں اس سے بات کرتا ہوں, تو کب کیا آپ نے مجھے فون؟ ذرا بتانا, وہ فون کیا کب تھا آپ نے مجھے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد نہیں تھا اور ہماری ویکس پہلے بات ہوئی تھی. وہ سکرین شاٹ میں یہاں پر لگاؤں کہ جب آپ کو میں میسج کرتا رہا ہوں آپ کے واٹس ایپ کے اوپر کہ بھائی صاحب رابطہ کر لیں, آپ کو کال کی میں نے 2 دفعہ 3 دفعہ, اس کے بعد آپ کو اکثر براڈوں کے اوپر بیٹھے دیکھا اور نیچے آپ کو میں نے میسج کیا کہ بھائی صاحب کوئی رابطہ نہیں آپ کر رہے, تو آپ تو جواب نہیں دے پا رہے تھے. آپ تو اس ٹائم اس چیز پر مگن ہوئے تھے کہ آپ دنیا کے اندر جا کے ہوسٹ ٹو ہوسٹ براڈ اوپن کر کے لوگوں کو جا کر یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ میں آپ لوگوں کی طرح سنی مسلمان ہوں. اس ٹائم تو آپ یہ پروپیگنڈے کے اندر لگے ہوئے تھے. آپ کو کہاں پر یہ یاد رہنا تھا؟ کیونکہ آپ پروپیگنڈا کر رہے تھے نا. آپ کو یہ یاد کیسے رہ جانا تھا کہ یار میں نے کسی اور بندے کے ساتھ بھی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے؟ یہاں پر پروپیگنڈا تو نہیں چلنا تھا نا, یہاں پر تو بات ہونی تھی. اور مجھے پتا ہے کہ آپ کوئی سنی مسلمان نہیں ہیں, آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ احمدی ہیں, اور میں احمدی کو کیا سمجھتا ہوں یہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ہماری نظر میں جو احمدیت قبول کرتا ہے ہم اسے کافر سمجھتے ہیں. ہمارے اندر یہ بات نہیں ہے کہ میں ایک دائرہ پہلے بناؤں اور پھر کہوں کہ یہ اس چیز کے کافر ہیں, اور ایک پھر بڑا دائرہ بنا کر کہوں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے. ہم یہ پروپیگنڈا نہیں کرتے, یہ پروپیگنڈا آپ کرتے ہیں. تو آپ کو یاد نہیں رہنا تھا نا. آپ کو تو یاد اس وجہ سے بھی نہیں رہنا تھا کیونکہ ایک دن پہلے آپ نے ٹیوانا صاحب کو کہا کہ جا کے یہ ایک نیا پروپیگنڈا کرو کہ طاہر صاحب نے احمدیت چھوڑ دی ہے. تو آپ کو کیسے یاد رہنا تھا؟ کیونکہ آپ تو ایک غلط کام, جھوٹ پر مبنی کام آپ کر رہے تھے, اور آپ کو یہی شوق ہے کرنے کا, کیونکہ اسی وجہ سے ہی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ احمدیت آپ سچی کر لیں گے. اسی وجہ سے تو آپ کو لگتا ہے آپ سب لوگوں کو کہ جھوٹ بولی جاؤ, جھوٹ بولی جاؤ, جھوٹ بولی جاؤ, شاید کوئی نہ کوئی بولا بالا مسلمان مان ہی لے گا نا. تو آپ مہربانی کریں, یہ جو میسج آپ لوگوں کو کر رہے ہیں نا کہ ویری انپروفیشنل, تو میں نے ابھی بھی آپ کا ایک میسج پڑھا ہے, آپ نے نیچے لکھا ہے کہ اوکے ول بی دیر سون لیٹ می فنش دس ورک. تو میں کوشش کروں گا کہ ابھی بھی 1 گھنٹہ براڈ کو اوپن رکھوں, کیونکہ 10 میرے بھی بچ جائیں گے 1 گھنٹے کے بعد. میری صبح پھر 6 o'clock جاب ہے مارننگ میں, تو میں 1 گھنٹہ اور براڈ اوپن رکھوں گا, اور میں دیکھوں گا کہ یہ جو میسج آپ نے ہمارے ایک بھائی کو کیا ہے, سخی کو, یہ میسج آپ میرے سامنے بیٹھ کے پڑھیں. پھر میں آپ کو ان لوگوں کے نام بھی بتاؤں گا جن لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا, اور ان لوگوں سے آپ نے کیا بات کی میں وہ بھی بتاؤں گا آپ کو. تو دیکھتے ہیں کتنی دیر میں آپ آتے ہیں یہاں پر اور کتنی دیر میں آپ کا یہ کام فنش ہوتا ہے. میرا تو یہ پرسنلی خیال ہے کہ اب کوئی حسن زن نہیں رہا, آپ کا یہ کام کبھی بھی فنش نہیں ہوگا. آپ کا یہ کام صرف اس وقت ہی اب فنش ہوگا جس ٹائم آپ کی اپنی براڈ چل رہی ہوگی. بس اس کے علاوہ آپ آج سے لے کے قیامت کے دن تک آپ کام پہ ہی رہیں گے, کام سے اب آپ کو چھٹی نہیں ملے گی. لہٰذا جی میری بات پھر ختم ہوئی ہے, آپ کریں بات. اچھا بھائی, بات یہ ہے کہ اس نوجوان کو میں نے ابھی تک اس براڈ سے پہلے کبھی کوئی سخت لفظ نہیں بولا, بلکہ وڈائش صاحب کو میں نے 2-3 دفعہ کہا کہ آپ اس بندے کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کریں, نرمی سے پیش آئیں. اگر اس کو واقعتاً ٹھوکر لگی ہوئی ہے, حالانکہ مجھے پہلے دن سے یہ احساس تھا
कि ट्विटर से आने वाले कई मुसलमान मुखलिस साथी उन्होंने मुझे मैसेज किए प्राइवेट में, और यहाँ तक भी वो वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है जिस वीडियो में वो उस मोटी सी औरत को ये गालियाँ दे रहा था। तो मुझे इस बंदे के करैक्टर का कुछ ना कुछ इदराक था। इसके बावजूद मैंने वड़ाई साहब को कहा कि वड़ाई साहब आप इसके साथ नरमी से पेश आएँ, और आप अगर उसके साथ कोई राब्ता रखना चाहते हैं रखें, हमारा कोई एतराज़ नहीं। हालांकि ये बात हमारे असूल के ख़िलाफ़ है। मैं आपको बताऊँ, मैं असूल पेश करने लगा हूँ, लेकिन मैंने उस असूल से भी हटकर इतनी नरमी कर दी। मैंने कहा भी वड़ाई साहब यार ऐसा ना हो कि कोई गलती खुर्दा शख्स हमारी किसी बेजा सख्ती की वजह से उसके साथ जुल्म ज़्यादती हो जाए और वो बंदा कल क़यामत के दिन हमें मुल्ज़िम ठहराए। लेकिन आज मैं पहली बार इस बराड पे सख्त लफ्ज़ इस बंदे के बारे में बोल रहा हूँ। तो ताहिर साहब मुझको माफ़ कर देना है, इन सख्त लफ्ज़ों के लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये सख्त लफ्ज़ बोलना ये मेरे ईमान का अब तकाज़ा है। जो बंदा इस्लाम को झूठा कहता है और मिर्ज़ायत की लानत को सच्चा कहता है, दर हकीकत वो लानती शख्स है और बदतीनत इंसान है। हमारी नज़र में वो मुर्तद है, मलून है और अल्लाह की धरती पर बदतरीन इंसान है। जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को सच्चा कह के सैयदुस सादिक़ैन को झुटलाता है, सच्चों के सरदार का इनकार करता है, वो ऐसा बदबख्त और लानती इंसान है कि उसके साथ किसी किस्म का प्यार का, नरमी का, मोहब्बत और शफ़क़त का लफ्ज़ बोलना हमारे ईमान के ख़िलाफ़ है, ईमान की गवाही के ख़िलाफ़ है। मजबूरी से ये लफ्ज़ कह रहा हूँ कि आप लानती तरीन इंसान हो, आप घटिया तरीन धोखेबाज तरीन इंसान हो, और ये मेरे ईमान की गवाही है। ज़ाती बुग़्ज़ और खुन्नस नहीं, मैं तो आपको जानता ही नहीं। आपकी करैक्टर की कुछ बातें मुझे मिली हैं, लेकिन मैं आपको ज़ाती तौर पर ना आपके गांव का पता, ना आपके सही नाम का पता। अलबत्ता मैसेज करने वालों ने बता दिया आपके वालिद का नाम, आपका नाम, आपकी रिहाइश, शहर, गांव, सारा कुछ मुझे बता दिया लोगों ने। अब ये जो बात मैं कर रहा हूँ, मैं अपने ज़ाती किसी गुस्से की वजह से नहीं कर रहा, बल्कि ये इस्लाम की सच्चाई की गवाही है कि जो बंदा इस्लाम को झूठा कहता है और मिर्ज़ायत को सच कहता है, उस जैसा लानती इंसान अल्लाह की धरती पर है ही कोई नहीं। वो बदबख्त तरीन इंसान है जिसने इस दुनिया में कुछ भी नहीं देखा। वो अपने माँ बाप के लिए तो कुछ नहीं कर सका, वो अपने लिए भी कुछ नहीं कर सका, वो किसी के लिए भी कुछ नहीं कर सका। वो कल अपनी औलाद के लिए क्या करेगा? शायद उसका भी रिश्ता औलाद वाला कायम ना हुआ हो। हम तो बच्चों वाले हैं। जब तुम्हें खुदा बच्चा देगा कोई, तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारे वालिदैन कहा करते थे, ढिड नालों गोडे गेड़े। पेट से भी बढ़कर जो घुटने हैं ना, वो आगे हो जाते हैं। औलाद का रिश्ता इतना खतरनाक होता है कि अपने जो पेट, जिस पेट से आप निकले हैं, एक ही पेट में आप अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ उसी पेट से निकल कर आए हैं ना, माँ के पेट से। वो जो पेट का रिश्ता है वो पीछे चला जाता है, ये जो गोडे का रिश्ता है ना, ये आगे आ जाता है। फिर आपको पता लगेगा कि आप उन बच्चों के लिए आपने क्या क्या गड़ा खोदा है। फिर आप कहेंगे बच्चों को देखकर, याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। मैंने माजी में इतनी बड़ी बड़ी चवलें मारी हैं, मैंने इतनी इतनी घटिया हरकत की है कि अब मैं इन बच्चों को क्या देकर जा रहा हूँ। बच्चे हमारे भी हैं, बल्कि मेरा बच्चा एक दिन, मैं घर गया, मैं वैसे ही ड्राइंग रूम में जाके बैठा सोफे पे, मेरा बेटा मेरे पास आया। आमतौर पर मैं उसके सामने, बच्चों के सामने नहीं करता, मोबाइल को खोलता नहीं हूँ, सुनता नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो ना सुने इस तरह की, क्योंकि ये सारा इंटॉक्सिकेशन हम अकेले ही बर्दाश्त करें। तो वो कुदरती मेरे बच्चे के आवाज़ में कान पड़ गई इस मिर्ज़ाई की, जो गालियाँ दे रहा था मुझे व्हाट्सअप मैसेज में सुन रहा था, जिसमें ये मिर्ज़ाई मुझे गालियाँ दे रहा। 18-20 साल का मेरा बेटा वापस आया घूम के बाहर वाले दरवाजे से,
मुझे कहता है पापा ये कौन है बंदा, और मैंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं बेटा, ये मिर्ज़ाई है। तुम्हें क्या ख्याल है कि तुम्हारे बाप ने किसी से मतलब कोई पैसे लिए उधार, कोई ज़ाती कोई किसी के साथ लड़ाई है? ये ईमान की बेटा लड़ाई है। तो आपको परेशान नहीं होना। आप जब ज़िंदगी में बड़े होके देखो, मेरा पोस्टर लगा हुआ, मुझे गालियां दी जा रही हैं, मेरी माँ को मेरे बाप को गालियां दी जा रही हैं, तो ये आपके लिए तमगे हैं कि आपको, आपके बाप को, आपके दादी दादे को गालियां दी गई मिर्ज़ाइयत की तरफ से, कुफर की तरफ से, इस्लाम की सच्चाई की वजह से, पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत की वजह से, मोहब्बत रसूल में हमने ये गालियां खाई हैं। ये हमारे लिए तमगे हैं बेटा, इनसे आपने परेशान नहीं होना। हम तो अपने बेटों को ये देकर, अपनी औलाद को ये फख्र देकर जाएंगे। तुम अपनी औलाद को क्या देकर जाओगे? तुम अपनी औलाद को ये गंदगी हाथ में पकड़ा के, गटरा हाथ में देकर जाओगे कि बेटा मैंने ये वारदातें की हैं, मैंने झूठ बोला लोगों से, फ्रॉड किया लोगों से, और लोगों से कहा मैं तहकीक करके मिर्ज़ाई हुआ। जब उन्होंने कहा कि हाँ इधर आए दिल पर हुनर आजमाए, चेक करें तुम्हारी तहकीक, इधर आओ हमारे सामने बैठो, तो मैं चारपाई के नीचे घुस गया। ये देकर जाओगे अपनी औलाद को, अपने फ्रॉड, अपना धोखा, अपनी वारदातें। चलो मजहब तो तुमने कोई कबूल नहीं किया, या तुम मुल्हिद हो या क्या हो क्या नहीं हो, वल्लाहु आलम, क्योंकि मिर्ज़ाई होना, मैंने जैसा कहा, दुनिया की सबसे बड़ी लानत है, इल्हाद से भी बड़ी लानत है। जो सही मुल्हिद है ना, सही मुल्हिद, ये तो कुछ तो मिर्ज़ाई है ना, खुद को मुल्हिद कहते हैं लेकिन हैं वो मिर्ज़ाई। मिर्ज़ा कादियानी को कोई लफ्ज़ सख्त बोले वो सीधा नबी पाक को गाली देते हैं, बल्कि 1,24,000 नबियों को गालियां देनी शुरू कर देते हैं। ये हरामी दरअसल मिर्ज़ाई हैं, कहते हैं हम मुल्हिद हो गए हैं। मुल्हिद नहीं है ये मिर्ज़ाई है। सिर्फ इनको मिर्ज़ा कादियानी की असलियत नज़र आ गई है तो वो अब मजबूर हैं। मिर्ज़ा कादियानी को भी सच्चा नहीं कह सकते, उनको यकीन हो गया तो ये तो झूठा निकला, तो वो अब दूसरे नबियों को गालियां दे रहे। जो सही मुल्हिद है, सही मुल्हिद, अल्लाह की कसम मैंने देखा है, उसमें बड़ी आजिज़ी होती है। वो खिलाफ किसी की नहीं बोलता, वो कहता है यार गल सुनो, अकीदा किसी का है तो किसी के साथ है, हमें क्या लेना देना। हमारा जब अकीदा है ही कोई नहीं तो हम किसी को बुरा क्यों कहें? खाम खा अपनी भी ज़ुबान गंदी करें, अपने दिमाग को भी वो धुनी दें, दूसरे के दिमाग को भी धुनी दें, ज़रूरत ही नहीं। जब हम बहस ही नहीं करते किसी के साथ अकीदे की। हमारी तरफ से आप सारे मजहबी जितने हो, कोई इस्लाम को मानता है, किसी मजहब को मानता है, हमारी तरफ से तुम सब आज़ाद हो, एक जैसे हो। हम किसी को अगर डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो सब की करेंगे, अगर रिस्पेक्ट करेंगे तो सब की करेंगे। वो है सही मुल्क। तो आप पता नहीं क्या हैं क्या नहीं है, लेकिन ये है कि आपने ये जो हरकत की है, आपने इस्लाम को गाली दी है, आपने पैगंबर इस्लाम को गाली दी है। आपकी इस हरकत से हमें तो खैर पता ही है, हमारा तो तजर्बा है, हमें तो कोई ठेस नहीं पहुंचती, हमें कोई धक्का नहीं लगता। लेकिन ये जो भोले भाले मुसलमान होते हैं, जिनको इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं होता मिर्ज़ाइयत के दजलो फरेब का, वो जब सुनते हैं तो वो इस पर परेशान से हो जाते हैं कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, बंदा मिर्ज़ाई हो सकता है, यानी कोई ऐसी चीज़ है उनमें कि बंदा इस्लाम को छोड़कर मिर्ज़ाइयत की तरफ भी राग़िब हो सकता है। वो शशोपांज में हो सकता है कोई बंदा पढ़ जाए सुन के। तो तुमने धोखा किया उन लोगों के साथ, ज़्यादती जुल्म की उन लोगों के साथ जिनके दिलों को तूने तकलीफ दी। तुम्हारे माँ बाप ने कैसी औलाद जनी, अगर वो खुद नहीं भी तरबियत कर सके, मैं समझता अब वो बरी ज़ुमा है, क्योंकि तुम जवान हो, बालिग हो, मैच्योर हो, तुम बच्चे तो नहीं हो, रोटी को चोची तो नहीं कहते हो। लेकिन ये जो तुम्हारी हरकत है ड्रामेबाजी वाली, ये ऐसे ही है जैसे वो चोरी की मैंने वारदात सुनाई थी ना, कि वो सियाने पंचायत ने हमारे सामने बैठकर कहा कि ये गलती नहीं है, मस्ती है। गलती ये होती है कि आप गुस्से में आकर किसी से लड़ पड़े, गाली दे दी, पत्थर मार दिया, गोली मार दी, कत्ल कर दिया बंदा गुस्से में आकर, ये है गलती। जज्बात कंट्रोल नहीं हो सकते। जब आपने ठंडे दिमाग से सोच समझ कर धोखा देने का या चोरी करने का, किसी के घर में घुसने का इरादा किया, तो आपने ये हरामजादगी जो की है, ये हरामजादगी, इसका नाम मस्ती है, ये गलती नहीं है। गलती और है, मस्ती और है। आपने आमदन ये बुराई की है जानबूझकर, जज्बात में आके नहीं की। जज्बात में कई दफ़ा बंदे ऐसी भी गलती कर जाते हैं
کہ میری نظر میں ذاتی طور پر میں اپنی رائے دینے لگا ہوں کہ بندے ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ مرفوع القلم ہوں. جب کوئی بندہ اپنی بہن کو برائی کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے یا اپنی بیوی کو برائی کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے یا اپنی ماں کو, شاید اس پر جذبات کا ایسا جنون, غیرت کا ایسا جنون چڑھ جاتا ہے, وہ کہتا ہے میں تو مر گیا, میری تو زندگی ختم ہو گئی, اس عورت نے, میری بیٹی نے, میری بہن نے, میری ماں نے میری زندگی برباد کر دی معاشرے منہ دکھانے کے. اس کے جذبات اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ شاید وہ مرفوع القلم ہوتا ہے. واللہ عالم, وہ رب جانتا ہے, وہ بندہ جانتا, میں نہیں کہہ رہا, لیکن جس بندے پر جنون کا غلبہ ہو وہ مرفوع القلم ہوتا ہے. یہ حدیث ہے, جس کی عقل نہ کام کرے. لیکن جو ہوش سے, عقل سے, جانتے بوجھتے کوئی واردات کرتا ہے, کسی کے گھر میں گھستا ہے, کوئی چوری کرتا ہے, ایون زنا کرنے کے بارے میں بھی ایک حدیث آتی ہے کہ جو شخص زنا کرتا ہے ایمان اس کے اندر سے نکل کر معلق ہو جاتا ہے اوپر. پتہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ کام عمدن کیا ہے, جذبات میں آ کے نہیں کیا. تھوڑا بہت جذبات غالب ہوتے ہیں لیکن اتنے نہیں ہوتے کہ اس کا دماغ کام نہ کر رہا ہو, مرفوع القلم نہیں ہو جاتا وہ. اس نے سوچ سمجھ کر, اس کو پتہ ہے میں برائی کر رہا ہوں, پھر بھی وہ کر رہا ہے. تو آپ نے ایک ایسی گھٹیا حرکت کی ہے کہ اس کی مثال کسی گناہ سے دی نہیں جا سکتی. سب سے گھٹیا حرکت آپ نے کی ہے, سب سے بری حرکت اور ذلیل حرکت آپ نے کی ہے کہ آپ نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ آپ تحقیق کر کے مرزائی ہوئے. میں قسم کھا